introduction, I welcome you all, and especially I would like to give thanks to our chairman, vice chairman, and our academic director at GBSET for this wonderful opportunity for the enhancement of your knowledge. As you all are aware that today we are here for one beautiful seminar on very interesting topic, and that is Introduction to NABH and its application in healthcare sector. Today we are having our alumni of Science Institute. He is working in Park Hospital, Panipat. His name is Dr. Praveen Singh. He has done BDS, he has done Master of Hospital Administration, and he has also done MPH from our own institute. And he is working as Deputy Medical Superintendent. He is having vast knowledge of administration and quality accreditation. So without any delay, I would like to call GB sir to welcome him and proceed further. Thank you so much. Good morning, students. My name is Dr. Pradeep Singh, and as I told you, I am the alumni of this prestigious institution. I am working as a Deputy Medical Superintendent in Park Hospital, Panipat. I have almost 7 years of experience in this hospital administration field, and from past 4 years I am working as a Deputy Medical Superintendent. Before Deputy Medical Superintendent, I was the Quality Manager in Delhi Heart and Lung Institute. And before Delhi Heart and Lung, I used to work for Fortis FMRI Gurgaon. So I'll share some of my experience with you as well as few points about NABH. So you all are comfortable in English, or I should use both bilingual? I'll use Hindi as well as English. बीच में दोनों चलेगा, ठीक है? क्योंकि some of you are comfortable in Hindi, some of you, okay? So today's topic is NABH. What is NABH? Anybody have any idea? NABH? आप लोग हॉस्पिटल्स तो जाते ही होंगे. वैसे इट्स नॉट गुड टू गो टू हॉस्पिटल एज अ पेशेंट, बट जाना पड़ता है. लाइफ में कभी ना कभी आपको जाना पड़ता है. बट आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, कल आप लोग वहां पे जॉब करने जाएंगे बिकॉज यू आर डूइंग MHA, MPH, BHA, नर्सिंग, MLT. तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को डेली बेसिस पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. सो टुडेज टॉपिक इज NABH. NABH इज a hospital's accreditation program. Like NABH, other countries have JCI. Like America, they use JCI, Joint Commission International. We have NABH. NABH stands for National Accreditation Board for, next slide please, for health and for hospitals and healthcare providers. JCI stands for Joint Commission International. We don't use JCI in India because it's an American standard. We use NABH. We follow European standards. India is the 12th country to opt this NABH standard. Like other developed countries, Japan has got their own healthcare standards. आप में से कई लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए होंगे, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉर योर ट्रीटमेंट? प्राइवेट हॉस्पिटल. उसके पीछे रीजन क्या है? फैसिलिटी, क्वालिटी. वो कैसे आती है? बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स. नाउडेज गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड रेज करने के लिए इवन अपने गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी MHAs एंड BHAs को हायर करना स्टार्ट कर दिया है. अभी लास्ट ईयर, आई डोंट नो अबाउट उत्तराखंड एंड यूपी आई नो, लास्ट ईयर यूपी में 150 पोस्ट फॉर MHA स्टूडेंट्स निकली थी. हरियाणा 95 पोस्ट निकली थी. Because they want to go for this NABH in their hospital. It's not that difficult task, but government people, उनको अपनी तरीके से काम करने की आदत होती है. प्राइवेट में क्या है, हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं. हम अपने जैसे ऑर्डर्स देते हैं तो हमारे जूनियर्स वैसे फॉलो करते हैं. प्राइवेट में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए. NABH में जनरली एक हॉस्पिटल की क्वालिटी के ऊपर फोकस होता है. हॉस्पिटल क्वालिटी, लाइक जो आप डिफरेंस देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में. NABH covers each and everything from gate to the top of the building. NABH
ऑल्सो टीच अस हाउ टू रन अ हॉस्पिटल। अगर आप लेमैन हैं, आपको नहीं पता मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में कैसे काम करना है, बट अगर उसके कुछ नॉर्म्स हैं, अगर वो NABH फॉलो करता है, आप NABH को फॉलो करो, आपको कुछ भी करने की अपनी तरफ से जरूरत नहीं है। NABH जो जैसे आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में भी एक गवर्नमेंट की तरफ से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन्होंने हर एक इंडस्ट्री को कुछ स्टैंडर्ड्स बना के दिए हैं। जैसे फॉर स्कूल्स दे हैव नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दे हैव कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, सो दैट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ जाते हैं। इन NABH वी हैव 10 चैप्टर्स। In 10 chapters we have 100 standards. In 100 standards we have almost near about 500 categories, like sub-standards we have. So out of these 10 chapters, first one is access, assessment and continuity of care, AAC we call it. In AAC, जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? क्या पूछते हैं आपसे सबसे पहले? नेम, आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, रिलीजन, XYZ, जो भी उनकी बेसिक डिटेल होती है। आफ्टर दैट वो आपसे क्या पूछते हैं? आपके डॉक्टर्स, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, क्या पूछते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम, whom you want to see? योर चीफ कंप्लेन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देन दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल असेसमेंट। आफ्टर दैट एक नर्सिंग स्टाफ आपके पास आके आपका BP, पल्स, RPS जो भी लेगा, सैंपल लेंगे, आपके ब्लड के सैंपल लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल असेसमेंट। एंड एट द टाइम ऑफ इनिशियल असेसमेंट टेम्परेरी प्रोविजनल डायग्नोसिस मेड बाय RMO प्रेजेंट ऑन द ड्यूटी। देन वी कॉल अ सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, जो कि एक फाइनल डायग्नोस बनाता है। उस दौरान कितनी देर में पेशेंट एंटर किया, कितनी देर में प्राइमरी डॉक्टर ने उसको असेस किया, कितनी देर में नर्सिंग स्टाफ ने उसको असेसमेंट किया, और सीनियर कंसल्टेंट कितनी देर में आता है। तो इसका जो टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, वो भी हमें नोट करना होता है इसमें, प्राइमरी इसमें। और ये सब फर्स्ट AAC में आता है, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। बिकॉज अगर इनिशियल असेसमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे इलाज कैसे होगा? बिकॉज सीधा स्ट्रेट अवे फ्रॉम इमरजेंसी आप पेशेंट को शिफ्ट करा दोगे जनरल वार्ड या इमरजेंसी वार्ड में। लाइक कई कंडीशंस में ऐसा होता है, पेशेंट आता है हॉस्पिटल में गैस्पिंग स्टेज में, वो आपको कुछ नहीं बता सकता, बट रोल आउट हमें ही करना पड़ता है। इन दैट मोमेंट योर टैट शुड बी वेरी लेस, टर्न अराउंड टाइम। आप ये नहीं कि कोई कोने में बैठा है, हाँ बाद में देख लेंगे पेशेंट को। ये सब एक एक चीज ऑन पेपर आपको AAC में नोट करनी होती है। फर्स्ट 5 पैरामीटर्स, 5 थिंग्स आर फॉर पेशेंट। नेक्स्ट 6 to 10 is for organization. In this we have. Second one is patient rights and education. The moment you enter in a private hospital, right now in government hospital, in most of the government hospital we don't have this thing displayed over there, patient rights and responsibilities. Okay, आप किसी एक NABH हॉस्पिटल में जाएंगे, आप यहाँ आपके नियर अबाउट जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, द मोमेंट यू एंटर OPD एरिया यू विल सी अबाउट पेशेंट राइट्स एंड पेशेंट what he can do. Patient has got many rights. Patient can know about his treatment. Okay, nothing should be confidential unless and until he is or she is a minor. पेशेंट को राइट होता है अपनी मर्जी से अपना डॉक्टर चूज करने का, अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट लेने का, रिफ्यूज करने का, अपनी मर्जी से सेकंड ओपिनियन लेने का। तो ये पेशेंट के राइट्स में आते हैं।
और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द पेशेंट एंटर्स इन इमरजेंसी, सपोज हमने पेशेंट का असेसमेंट किया एंड ही और शी गॉट HIV और एनी अदर इन्फेक्शन, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है एंड ही इज एन ग्रोन अप एडल्ट, तो हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं उसी टाइम पे। एंड एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, PRE वी कॉल इट, कई तरह की आपके डॉक्टर्स के विजिटिंग आवर्स ये होंगे, आपके सुबह शाम एम्प्लॉय को उसके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं तो उसके राइट्स भी दो। राइट्स कैसे? उसको ELCL मिलनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस काम कराते रहो, 30 दिन छुट्टी ना दो, इलेक्टिव लीव, सिक लीव मिलनी चाहिए पेशेंट उसको, मिनिमम वेजेस से ऊपर उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसका हेल्थ केयर कार्ड बना होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा, एम्प्लॉय और उसके घर वालों का इंश्योरेंस हॉस्पिटल करवाता है कि अगर काम करते करते अगर इसके घर में कोई दिक्कत आ जाती है या मेरे एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ जाती है, इट डजंट मैटर वो रिसेप्शन पे काम करता है, मेरा नर्सिंग स्टाफ है, मेरा डॉक्टर है, मेरा स्वीपर है, इट डजंट मैटर, सबका इंश्योरेंस हॉस्पिटल कराता है। वो हमारे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडुकेट इक्विपमेंट, मैन, मटेरियल, मशीन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करते हैं, आप ये 3 चीजों को हमेशा याद रखना, मैन, मटेरियल, मशीन। मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल में घुसता हूं तो एक हॉस्पिटल का राउंड यही लेके देखता हूं, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी तरीके की मैन पावर तो कम नहीं। तो ये चाहिए था कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में भी आते हैं और इफ एनीथिंग हैपेंस टू अस और इफ वी आर सेंडिंग आवर एनी पेशेंट इन फॉर दिस हेल्थ केयर टूरिज्म, you need to follow some standards। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वाला ही हाल था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी पहले। आज सच कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता था। पेशेंट को नीडल लगी, नीडल नीचे पड़ी है, वो नीडल किसको ब्रेक हो सकती है, दैट कैन कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज, HIV भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उससे। बट NABH उसके ऊपर भी RCA कापा करवाता है कि नीडल यहाँ क्यों पड़ी है, किस स्टाफ की गलती से ये नीडल नीचे गिरी है, वो इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे है। ये चीज है NABH एक एक चीज आपको बताता है। 5th वन इज हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, HIC जो होता है। हॉस्पिटल से ज्यादा इन्फेक्शियस साइट कोई नहीं होती। क्यों? जितने भी बीमार लोग होते हैं सब कहाँ आते हैं? हॉस्पिटल में आते हैं। और देयर इज 99% चांस कि यू गेट ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ओवर देयर। हम वहां काम करते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। व्हेन आई गो टू होम आई टेक अ बाथ। घर में छोटा बच्चा है, वैसे भी आपने कोविड में देखा होगा, आपको कुछ ज्यादा ही ये सब हो गया। 99% ऐसा होता है कि अगर मुझे फीवर आता है या किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही होता है। हम लोगों को सबसे ज्यादा, अगर एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में, वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझे तो टीबी नहीं हो सकता। रिसेप्शनिस्ट को भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं तो IT वाला स्टाफ हूँ, मुझे नहीं हो सकता। वो भी हॉस्पिटल में काम करता है, उसे भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते मैं फ्लोर मैनेजर हूँ, ऑपरेशन मैनेजर हूँ, आई डोंट ट्रीट पेशेंट्स। आपको हो सकता है। उसके लिए फिर NABH ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए टू कंट्रोल दैट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फॉर TB और लाइक कम्युनिकेबल डिजीज वी हैव सेपरेट वार्ड्स। फॉर कम्युनिकेबल डिजीज और कोई भी ऐसा डिजीज जो कि नॉर्मली स्प्रेड हो सकता है, लाइक कोविड के लिए हमने सेपरेट वार्ड्स, आइसोलेशंस बनाई ताकि ये अंदर ही रहे, इतना स्प्रेड ना हो बाहर। अब इससे भी कंट्रोल नहीं होगा। स्टाफ तो अंदर बाहर आएगा जाएगा, स्टाफ ही तो लेके पूरे हॉस्पिटल के अंदर घूमेगा। वो तो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए किसी बंदे को भी जाके दे सकता है एट द टाइम ऑफ लंच, जब वो अपने कलीग के साथ बैठेगा। टाइम टू टाइम हम लोग डिपार्टमेंट्स की फ्यूमिगेशन कराते हैं डिसइंफेक्टेंट के साथ। डॉक्टर्स, देन हाउसकीपिंग, ये लोग सबसे हाई रिस्क के ऊपर होते हैं कि इनको इन्फेक्शन लग सकता है। एट द टाइम ऑफ कोविड
आउट ऑफ 300 स्टाफ 250 वाज कोविड पॉजिटिव, और 250 में से मैं आपको बताऊं 200 को जिनको सिम्टम्स नहीं थे हमें फ्लोर पे काम करवाना पड़ा उन लोगों से। वो लोग इन्फेक्टेड थे, उनको घर भी नहीं जाने दिया गया जब तक वो नेगेटिव नहीं आए 2 to 3 वीक्स, और उन लोगों ने पेशेंट्स के लिए काम भी किया एडमिट होकर। तो ऐसी कंडीशन किसने सोचा नहीं था कि कोविड जैसी कोई दिक्कत भी कभी आ सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो भी देखना पड़ा। अभी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में बहुत अच्छा चला है, बट हम ये सोच के बैठे थे कि थर्ड वेव आएगी, जिसका आप कुछ कह नहीं सकते। इन अदर कंट्रीज दे आर फेसिंग थर्ड वेव, बट इन इंडिया अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। दैट मे बी ड्यू टू कि हमने टेस्ट करने में बहुत कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है और टेस्टिंग कम कर दी है। लाइक RT-PCR इज मोर ऑथेंटिक देन दिस रैपिड एंटीजन, तो हम सिर्फ बट रैपिड एंटीजन ही कर रहे हैं क्योंकि दैट इज मोर चीपर। RT-PCR थोड़ा महंगा पड़ता है और रैपिड एंटीजन इज जस्ट अ कार्ड टेस्ट, 2 मिनट में देख के बता देंगे कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ठीक है। लेबोरेटरीज होती हैं उनके लिए NABL होता है, नॉट NABH। एक NABH हॉस्पिटल के अंदर एक नॉन NABL लेबोरेटरी हो सकती है, बट जैसे आप ये देखते हो लाल पैर, कोर डायग्नोस्टिक, ये NABL नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन फॉर लेबोरेटरीज करती है NABL। ये जो QCI है इसने ईयर 2000 के बाद ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट किए। इन फैक्ट्रीज के लिए भी इन्होंने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड स्टैब्लिश किया, जिसके अंदर कई कुछ नॉर्म्स हैं कि एम्प्लॉय की सेफ्टी आप देखोगे, 14 साल 18 साल से नीचे वालों को काम करने नहीं दोगे, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दोगे। वैसे ही जैसे आप लोग स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हो, आपके लिए भी QCI ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड रखा हुआ है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग, NABT। तो उसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्टूडेंट्स के भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए गए, उसी के हिसाब से तो ये लॉ आया है कि एक स्टूडेंट के ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता। हमारे टाइम में ये नहीं था, हमें तो बहुत पीटा जाता था, बहुत मार खाई है हम लोगों ने। जैसे हमने 12th पास की, ये लॉ आ गया, मार खा चुके थे हम लोग। अभी कई इंटरनेशनल स्कूल्स आप देखोगे जो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, तो उनको नेशनल एक्रेडिटेशन वाले नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं इंडियन गवर्नमेंट की, लाइक GD गोनिका और भी बड़े बड़े अपोलो इंटरनेशनल, ये बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं इनके अंदर ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं। ये होता है एम्प्लॉयज और कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए। और कोई डाउट? GNM फर्स्ट ईयर। तो आज का जो NABH का जो सेमिनार हुआ, इसमें मतलब हमें पहले से जब हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए गए थे तो तब NABH का राउंड हुआ था हॉस्पिटल में, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में हमें आज पता चला कि व्हाट इज़ NABH है क्या, इसके अंदर कौन से रूल्स आते हैं, कौन से मतलब क्या, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हमें अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। ये जो सेमिनार है बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल है, और इससे हमारे NABH और NABL के बारे में जानकारी मिल रही है, और ऐसे सेमिनार फ्यूचर में भी होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमें हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए और हमें कैसा रहना चाहिए। मेरा नाम अंजलि नेगी है, मैं GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, और हमारा जो आज का सेमिनार है हमें सर ने NABH के बारे में बताया है, और मतलब उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसे हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग में गए हैं, जैसे मैक्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी हमने देखा है कि NABH के जो प्रोटोकॉल है उन्होंने काफ़ी फॉलो किए हैं। हमने स्टाफ को देखा है वहाँ पे करते हुए, और हमने भी उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी है, हमने काफ़ी चीज़ें खुद से ऑब्जर्वेशन किया है। My name is Akanksha and I am from BHA third year, Devbhoomi Institute of Dehradun, and we are right now learning much more things about quality NABH, and sir is too good about all these things.
Thank you so much for inviting us. Thank you.